पे. And when you go to courts, usually all the cases, they tend to, after obviously going through the trial phase, they go towards the high courts, and after the high courts to the Supreme Courts, if they have the budget, obviously. Looking at all these things, especially पिछले दिनों एक बहुत से रिलेटिव हैं उनके साथ में बैठा, he started mediation. He's an ex-Chief Justice of the Lahore High Court, and he's doing really good work. He said that I want to pay back to the society, and in front of me he solved more than 20-25 almost divorce cases. So it was pretty magical, as you emphasized. So बड़ा अच्छा लगा sir. Thank you so much for this initiative, and I look forward to it. Thank you. Thank you very much, Uzair, for joining. All right, Jasim. Song sir. So सबसे पहले तो I'm almost done with the first year. तो सबसे जो motivation as in बस mainly यही थी कि as a new skill सीखना, considering कि अभी तो बिल्कुल early phase of the law. और second, apart from the जैसा सबने बताया कि apart from the legal side, अभी इस्लाम even कि पाकिस्तान में भी we have seen issues regarding जो हमारे sectarianism है, या even कि जो communal peace building है, उसके अंदर बड़ा gap है. तो I believe कि apart from उसको कोर्ट्स में लेके जाना, I think we can solve through the mediation वगैरह उसको एक अच्छे तरीके से. तो ये कुछ mainly reasons है which I've encouraged. Okay, बहुत शुक्रिया जासिम, बिल्कुल ठीक बात की आपने. ऑलराइट मंसूर. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मंसूर अली खान है. सर मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLB एक्सटर्नल प्रोग्राम पे. सर मेडिएशन का सर इसीलिए मैंने चूज़ किया कि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको डिफरेंट किस्म की स्किल्स आनी चाहिए और आप मतलब ओपन होने चाहिए रोज़ाना न्यू स्किल्स सीखने के लिए. इसीलिए मेडिएशन मतलब इसीलिए मैंने चूज़ किया है. और मेडिएशन का सर ये है कि जब हम कोर्ट में एक केस लेके जाते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए लेके जाते हैं. तो जब हम एक जजमेंट पास कर देते हैं तो उसमें एक पार्टी को लॉस हो रहा होता है और एक पार्टी को गेन हो रहा होता है, और उनका रिलेशनशिप भी दोनों पार्टीज का आपस में खराब हो रहा होता है. तो बजाय कि हम अगर मेडिएशन अगर इसको लेके आएंगे तो इसमें दोनों पार्टियों को मतलब कि उनका रिलेशन खराब नहीं होगा और उनको उनके डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर पाएंगे rather than कि हम जजमेंट पास कर देंगे. I completely agree. I completely agree. Thank you very much, Mansoor. All right, Shah Ali. Assalamu alaikum, sir. My name is Shah Ali, and I'm in my first year of LLB. And I chose to participate in this because I feel like mediation is another sector to all of this. Matlab law ke andar to lawly side, and then mediation is completely aside. Like you mentioned, and a few other people also mentioned, there are a lot of backlog of cases, और मतलब बहुत साल लग जाते हैं मतलब एक ही केस सॉल्व होने में. एंड आई हैव सीन इट पर्सनली एज वेल. मेरे फैमिली के अंदर भी अगर कोई केसेस होंगे तो काफ़ी सालों से चल रहे हैं, इफ़ नॉट जनरेशंस. So I feel like if mediation was more openly available in Pakistan, so cases would be solved much easier and there wouldn't be this much hassle. And that's basically it. All right, बिल्कुल ठीक कहा आपने अली. Thank you very much. Zunaira Siraj. Assalamualaikum everyone. I'm Zunaira Siraj. मैं A-level law student. I just gave my ASK CIs. I just got done with them. And the reason why I'm participating in this program is because in the A-levels में सिर्फ मुर्तज़ा से mediation पढ़ी थी, so I really liked it, and I think this is a good opportunity to learn more. All right, inshallah, Zunaira. Thank you. All right, Zunaira Abbas. Assalamualaikum. I am Zunaira, and I chose to participate in this class. And first of all, thank you, sir, for giving me the opportunity. And I feel like mediation helps lessen the burden of the courts. And if it was easily accessible in Pakistan, तो कोर्ट्स पे इतना ज़्यादा बर्डन ना होता और हमारे केसेस जो इतने ज़्यादा फॉर years and years पेंडिंग रहते हैं तो वो कम होता. So mediation is like a short way towards a stronger resolution. I completely agree. Inshallah, आपके लिए भी ये
फ्रूटफुल रहेगा. ऑलराइट, लास्ट ज़ैनब. Assalamu alaikum. First of all, I'm very thankful to Sir Murtaza कि उन्होंने opportunity दी इस सेशन को ज्वाइन करने की. और मीडिएशन के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, बट जब मुझे पता लगा तो मैंने इस पर रिसर्च किया. एंड it plays a very vital role in our society, conflicts को सॉल्व करने में और इन सब चीज़ों को. So मुझे अब अच्छा लग रहा है. I really want to learn more about it. बिल्कुल And ऐसा ही I'm है. a second year law student. Yes. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब. सो आप जैसे नोट करें तो कुछ लोग जानते हैं मीडिएशन के बारे में, कुछ नहीं जानते. तो पर्पस है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, और मैं नहीं सिर्फ आप भी अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जब आप वकील बनते हैं और आपके पास क्लाइंट आ रहा है, तो क्लाइंट को हम सीखेंगे इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर कि हाउ डू यू मेक अ रिलक्टेंट पार्टी टू मीडिएट. ये बहुत दफा आपके साथ होगा आपके करियर में, एडवाइस करते हुए कि आप मीडिएशन करना चाह रहे हो पर दूसरी पार्टी नहीं चाह रही. आपके पास एक पार्टी आई है और उसने कहा कि सर मैंने मीडिएशन करना है, और वो कह रहे हैं सर पर वो जो दूसरी पार्टी है वो मीडिएशन नहीं करना चाह रही. सो हाउ डू वी मेक श्योर कि उसको परसुएट कैसे किया जाए, ये भी एक स्किल है. एक हमारी इंशाल्लाह जो कल की जो ट्रेनिंग होगी उसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकलिटीज को देखेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये नहीं कि आप मीडिएशन की थ्योरी सीख लोगे तो मीडिएशन आ जाएगी. मीडिएशन इज एन एक्चुअल स्किल. जैसे कम्युनिकेशन एक स्किल है, लीडरशिप एक स्किल है, तो मीडिएशन एक स्किल है. इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक्टिव लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें. और हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे अभी, और उस वीडियो में, क्योंकि आप बहुत सारों को मीडिएशन वर्क कैसे करता है इसका कोई खास आइडिया नहीं है. शायद किसी ने होते देखा हो, किसी ने सिर्फ सुना हो पर देखा ना हो. एक दफा इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें कि मीडिएशन कैसे होती है. तब आपको बड़ी साफ साफ आपको नजर आएगा कि यार मैंने अगर इस चेयर पे बैठना है तो मेरा रोल क्या है, और इस चेयर पे बैठना है तो मेरा रोल क्या है. सो वी गोना वॉच अ स्मॉल वीडियो ऑन मीडिएशन. हाउ डज मीडिएशन वर्क. सो let's begin. Please let me know if this is visible. Please hi या ना कह दो. Yes sir, नजर आ रहा है. Okay जी, perfect. सर आवाज एक चीज मैं सर आवाज जी मैं अभी ऑन करूंगा, मैं ऑन करूंगा उसको. एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि इन टर्म्स ऑफ मीडिएशन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बैठे होंगे. इधर एक बीच में मीडिएटर बैठा होगा, उसके सामने जो अग्रीव्ड पार्टीज है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जो अपना मसला लेके आए हैं वो बैठे होंगे, और इन 2 लोगों के साथ इनके साथ एक और बंदा भी बैठा होगा. वो कौन है वो भी आपने देखना है और ऑब्जर्व करना है कि इस मीडिएशन के अंदर आप कहाँ बैठना चाहते हो. क्या आप मीडिएटर की चेयर पे बैठना पसंद करोगे या आप उस क्लाइंट के साथ वाली चेयर पे बैठना पसंद करोगे. ये दोनों रोल्स आपके लिए अवेलेबल है. You can act as mediators, or if you just want to be a lawyer and you want to take part in mediation, what's your role, वो भी इंशाल्लाह उसको देखते हैं. So please let's start now. सब कुछ fictional है इसके अंदर और to litigation. start हो रहा है. Zeus is a small energy company based in the EU member state of Argatha. It is in dispute with Ares, a large energy producer based outside the EU. The dispute concerns Zeus's need for the right to a reduction in the price and volume commitment for gas sold by Ares to Zeus under a long-term gas supply contract entered into between the parties 10 years ago. जी ज़ुनैरा. Zeus has attempted to vary its commitments under the contract by requesting a periodic revision to the price formula
to take account of the major changes in energy markets. Ares has stated its intention to issue proceedings against Zeus, claiming €50 million relating to Zeus's failure to meet the take-or-pay contractual obligation under the supply contract. Zeus maintains that Ares' insistence on the original terms of the contract is anti-competitive and has stated that it will make a complaint to the competition authorities if Ares does not come to the negotiating table. Barbara is head of sales at Zeus and knows that her job will be on the line if the matter is not resolved without delay. Enrico is Zeus's external counsel and a senior associate at Amicable Law. It was he who suggested the mediation. Kevin is the commercial director at Ares. He is a hard-nosed negotiator and has only agreed to mediation to make clear his position. He knows very little about the process. He is represented by Nadia, the external lawyer for Ares and a partner from Sue Law. She is sceptical of the benefits, but has agreed to represent her client at the mediation. The parties have chosen Martha to act as their mediator. She has a wide range of experience of handling complex commercial disputes with a focus on regulated industries. We join them as Barbara, Enrico, Kevin and Nadia start the joint meeting with Martha. Okay, so if I can stop here. यहाँ पे देखें ये जो बीच में है, she is the mediator, और ये parties ने खुद choose किया है. इसमें से parties है ये अंकल यहाँ पे और ये आंटी यहाँ पे. These are the parties in the dispute, and both of these parties are accompanied by their lawyers. ये जनाब और ये मैडम, ये दोनों वकील हैं जो उन parties के साथ बैठी हुई है. इसका मतलब है इस पिक्चर से आपको ये बात अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपने एज लॉयर मीडिएशन के अंदर पार्ट लेना होता है. ऐसा नहीं कि पार्टीज अकेली बैठ के मीडिएशन करके आ जाएगी, वो कर सकती हैं, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल. इट्स बेटर टू गो इन मीडिएशन विद योर लॉयर, एंड 80% ऑफ द थिंग्स डन इन द मीडिएशन इज थ्रू द लॉयर. वो जब आपस में बात करेंगे तो वो फिर आपके कान में पूछेंगे कि क्या कहूं इसको अब आगे. तो आपने मीडिएशन के अंदर हिस्सा लेना होता है एज अ लॉयर. Your job is to help communicate your client's interest to the other party. वो आपने मीडिएशन के टेबल पे बैठ के करना. तो जिस तरह आप कोर्ट में जज साहब को कम्युनिकेट करते हो, यहाँ पे आपने मीडिएटर को कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के बारे में. सो नाउ इन मीडिएशन यू कैन ईदर चूज, अगर आप लगता है कि नहीं यार मैंने मीडिएटर बनना है, I don't want to assess the parties over here, sitting over here as a lawyer, but I want to be this guy जो पूरा केस को समझे, अंडरस्टैंड करे, फैसिलिटेशन करें. वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. सो आप दोनों में से दोनों ऑप्शंस को देख सकते हो. सो आप में से कोई भी लॉ फर्म ज्वाइन करता है या अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, आपके पास केसेस आएंगे मीडिएशन के, एंड यू विल एक्ट एज दिस गाय in the mediation. So this mediation skill is so important that it's not only required to be a mediator, but as a lawyer it's super important to have this skill, क्योंकि आपके पास कोई केस आ जाएगा जिसमें आपका क्लाइंट कह रहा है कि यार मैंने मीडिएशन ट्राई करनी है, तो आप ये नहीं कह सकते यार मुझे तो पता ही नहीं है मीडिएशन प्रोसेस क्या होता है, सॉरी आई कांट असिस्ट यू. आप कहोगे यस आई नो द मीडिएशन प्रोसेस, लेट्स गो इनटू मीडिएशन. सो as a lawyer you need to know the skill of mediation, तभी जाके आप इस रूम में बैठ सकते हो, क्योंकि इसके नो हाउस पता होना, इसमें मीडिएटर का रोल पता होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है. थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं. Welcome, good morning, and thank you all for instructing me to be your mediator today. As we've already talked about in the private sessions, the purpose of getting everybody together this morning in this joint meeting is to make sure that you're all clear about the structure of today and how it will pan out. In a moment, I'll invite each team to make an opening statement. I'll ask the lawyers to do that. And the purpose of that is to establish exactly what's important to you and what you'd like to achieve in today's session. It's pretty straightforward. Zeus owes money and are now seeking to get out of the deal. A deal is a deal.
So you all know each other, you're familiar. So let's dispense with formalities. You've said to me privately that you're happy to use first names. I take ये जो लड़की अभी कर रही है मीडिएटर, ये इसको हम कहते हैं ओपनिंग फेज, और ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड फेज होता है। इसमें जो ये लड़की है, ये जो मीडिएटर है, ये एक स्ट्रक्चर के साथ चलेगी। ये पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी, दोनों पार्टीज को सेटल डाउन करेगी, उनसे पूछेगी कि आप दोनों मीडिएशन प्रोसेस को जानते हो या नहीं जानते। अगर नहीं जानते थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी। पर अगर आपने देखा कि ये एक जनाब थे बीच में, ये वाले भाई, ये बीच में बात काट रहे थे, और ये थोड़े से, अभी आप आगे भी देखोगे, थोड़ा सा बदतमीज आदमी है ये। और ये होगा मीडिएशन में, इस तरह होगा कि एक पार्टी बदतमीज है, बात काट रही है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही, और अपने आप की पावर शो कर रही है। पर इसी में ही मीडिएटर का काम है कि वो इसको न्यूट्रलाइज करेगी। और आप देखेंगे, हम इसको पूरी वीडियो अभी नहीं देख रहे बिकॉज हमारा जो बाकी ट्रेनिंग का हिस्सा है वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बट देयर इज एन ओपनिंग फेज वेयर द मीडिएटर ट्राइज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, और फिर उसके बाद दोनों पार्टीज को एक एक करके अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इंटरेस्ट को पुट फॉरवर्ड करने की। सो मीडिएशन इज नॉट कि बस आप बैठ के दोनों के बीच में दोस्ती करवाओगे, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। और ये पूरा स्ट्रक्चर हम डे 3 के अंदर सीखेंगे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, कंक्लूजन स्टेज क्या है। एक एक स्टेज को हमने डिटेल में देखना है। दिस इज बेसिकली व्हाट मीडिएशन इज, दैट आप यहाँ बैठे और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से मसले को हल करने की कोशिश करें। नाउ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली लोग मीडिएशन के बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं, कोई बताएगा कि क्या मीडिएटर जजमेंट देता है या नहीं देता? No. Mediator does not decide cases. What's the role of mediator? Can anyone explain what's the role of mediator? They listen to both the parties and try and give out a solution जो दोनों को सूट करता हो. So solution निकालना मीडिएटर का काम नहीं है, और यही जनरल एक परसेप्शन मीडिएशन के बारे में है कि मीडिएटर ने सॉल्यूशन निकालना है. That's not what mediator has to do. मीडिएटर का काम सजेशन नहीं है. ये इतना आसान काम है आपने मीडिएटर की तरह करना है कि आपने सिंपली इस रूम में बैठना है और दोनों पार्टीज को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ इनेबल करना कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके. दैट्स इट. यू डोंट नीड टू हेट द केस एंड से कि यार मुझे लगता है तुम ऐसा करो, तुम इसको इतने पैसे दे दो, तुम इन रिटर्न ये कर दो. नो, दैट्स नॉट द जॉब ऑफ द मीडिएटर. और एज मीडिएटर हमेशा कोशिश करनी है कि इवैल्यूएशन की तरफ नहीं जाना अपने. कुछ चले जाते हैं लोग, कुछ लोग अपनी ओपिनियंस देना शुरू कर देते हैं, बट ये अच्छी चीज नहीं है. कभी भी मीडिएशन में आप लोगों ने ओपिनियंस अपने नहीं देने. ये नहीं कहना कि यार मेरा ख्याल है तुम ये कर लो, या आप इवैल्यूएट करते हो कि यार तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है, तुम्हारी वीक है, तो तुम आपस में एक दूसरे को ये दे दो. ये भी नहीं करना कभी. व्हाई? बिकॉज द जॉब ऑफ द मीडिएटर इज टू स्टे न्यूट्रल. जब आप इवैल्यूएशन पे चले जाओगे, जब आप सोल्यूशन की तरफ चलना जाओगे खुद, तो फिर वो बायसेस क्रिएट कर सकता है और वो पार्शियलिटी बीच में पार्शियलिटी क्रिएट कर सकता है. और ऑल्सो अगर आप नेग्लिजेंट हुए अपने सोल्यूशन में, तो आपके खिलाफ नेग्लिजेंस के अंदर केस भी हो सकता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आप सू हो सकते हो. बिकॉज mediation is a contract between the parties and the mediator. और उसमें breach of contract भी हो सकता है, उसमें negligence भी हो सकता है. So अगर आपने solution या evaluation गलत दी, तो याद रखो आप बाद में सू भी हो सकते हो. So never ever go into evaluation, never go into opinions, recommendations until the parties ask for it. If the parties ask for it, you can do it. और अभी हम बात करेंगे कितनी स्टाइल ऑफ मीडिएशन होते हैं और आप अपना स्टाइल पिक कर सकते हो आज मीडिएशन में. यार मुझे इस स्टाइल में लेना है, ये स्टाइल में रहना है. 80% ऑफ द मीडिएटर्स स्टिक टू वन स्टाइल. वो स्टाइल की हम बात करेंगे. सो ये आपके सामने जो अभी स्लाइड है, ये कुछ
फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल राइज के अंदर मीडिएशन के लिए। इंक्रीज litigation cost, we all know that. Court delays, we all know that. Confidentiality benefits, that's like the prime diamond of mediation, कि confidentiality exist करती है mediation में। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम mediation नहीं try करेंगे क्योंकि ये ना हो कि हम mediation में सब कुछ एक दूसरे को बताएं और फिर कल वो कोर्ट में केस करके हमारे खिलाफ वो उन बातों को इस्तेमाल करें जो हमने डिस्क्लोज कर दिए। No, you can't. Anything that is disclosed in the mediation cannot be used anywhere or can be disclosed anywhere in the courts afterwards. So it's a completely confidential process. जो डॉक्यूमेंट हो, जो बात हो, जो मीडिएशन में प्रेजेंट की गई है, वो वहां से बाहर नहीं जा सकता और उसके बाद वो बाहर कोर्ट में डिस्कस भी नहीं हो सकता कि आप कोर्ट में जाके कहो कि नहीं नहीं सर इसने मीडिएशन में तो मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाया था। No, that's illegal. You can't use anything that is being used in mediation outside. So आपको फुल प्रोटेक्शन है कि आपने डरना नहीं है कि यार मैंने मीडिएशन ट्राई कर ली तो सब कुछ उसको दिखाना पड़ेगा और फिर कल कोर्ट में वो मेरे खिलाफ इन बातों को इस्तेमाल करेगा। Impossible. Mediation is a confidential, I would say, process. आखिरी चीज जो इसके फैक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है वो है हाई सक्सेस रेट। कोई भी रेट इसका 80-85 से कम नहीं है। 80-85% सक्सेस रेट इसका हर एरिया के अंदर है। मैंने इसीलिए यूज किया वर्ड मैजिकल है ये। तो हाई सक्सेस रेट एग्जिस्ट करता है फॉर मीडिएशन। देयर इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट आई वुड लाइक टू शो, हॉल्सली एंड मिल्टन एंड जेम्स चर्चिल केस। ये दो केसेस आपके सामने लिखे भी है, ये मैं स्लाइड्स आपके साथ आखिर में शेयर भी करूंगा। The James Churchill case of 2024 is a landmark case today. 2024 में जो कोर्ट ऑफ अपील है यूके की, उसने ये डिसीजन दिया जिसकी बेसिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला मीडिएशन का केस पाकिस्तान के अंदर इसी केस को साइट करके दिया है कि जेम्स चर्चिल के अंदर क्योंकि ये कंपलसरी मीडिएशन आ गई है अब, तो अब हमें पाकिस्तान में भी लेके आना है। यूके के अंदर 2024 के अंदर कंपलसरी मीडिएशन आ चुकी है। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते मीडिएशन ट्राई किए बगैर। इन द यूके बैरियर लग चुका है। पहले हॉल्सली एंड मिल्टन का केस था 2004 का जो कहता था कि भाई मीडिएशन ट्राई करो, पर अगर आप मीडिएशन ट्राई किए बगैर आओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी अगर हम डालेंगे तो वो आपका आर्टिकल 6 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ब्रीच करेगा, विच इज द एक्सेस टू द कोर्ट और द राइट टू अ फेयर ट्रायल। कि अगर हम आपको रोक दे कि नहीं मीडिएशन करके आओ तभी जाके आपको कोर्ट में आने देंगे, तो फिर तो आपके राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। ये हॉल्सली एंड मिल्टन में लॉर्ड डायसन ने ये बात की थी। बट जेम्स चर्चिल में 2024 में कहा गया कि नहीं, दैट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 6। फेयर ट्रायल इंश्योर होता है आपका भी और दूसरे का भी अगर मीडिएशन ट्राई करके आप कोर्ट आओ। So this James Churchill case of 2024 is a landmark case today. और इसकी बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे केस जो अब वो है क्या पाकिस्तान के डिसीजंस वो हमारे पास आ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और जिस केस की मैं बात कर रहा था जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये डिसीजन दिया है, ये केस मैंने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है। मीडिएशन पंजाब के अंदर जो कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन है वो बना दिए गए हैं ऑलरेडी। सो आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब और इस्लामाबाद, तो वहां पे इस्लामाबाद और पंजाब दोनों के अंदर कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में ऑर्डर दिया जा सकता है दैट ओ गो टू द मीडिएशन। कोर्ट ऑर्डर देता है मीडिएशन का अब, और रेगुलरली कोर्ट ने मीडिएशन ऑर्डर्स दिए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को भी देखेंगे, ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा तो आप इसको रीड करना। हाई कोर्ट के अंदर ये हमारे पास कुछ केस लॉज हैं जहां पे मीडिएशन को इंश्योर किया गया है। सोहेल निसार वर्सेस नदीम निसार के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर मीडिएशन की बात की गई इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेंबर क्लोज रिलेशनशिप के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके अंदर क्या कहते हैं कॉस्ट सेविंग की बात की गई, और पर्सनल रिलेशन और बिजनेस रिलेशनशिप को करने की बात की गई। सो दैट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखा है। इसी तरह डिसीजन सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टिल 2024 केसेस आते जा रहे हैं।
एक्सपेडाइट केस रेजोल्यूशन को हर केस के अंदर प्रमोट किया गया है, इंकरेज किया जा रहा है मीडिएशन को कि इसको इस्तेमाल करें, और वकीलों को भी कहा जा रहा है कि खुदारा प्लीज एडवाइस करें अपनी पार्टीज को कि ट्राई मीडिएशन बिफोर कमिंग टू द कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसी तरह सिचुएशन है, एम्फसाइज किया गया है इस नॉन बाइंडिंग नेचर के अंदर, और रोल ऑफ मीडिएटर के बारे में बड़ी डिटेल जजमेंट्स आई है कि इसको किस किस तरह से काम करना चाहिए। सो नाउ अगर थोड़ी सी बात कर लें कि इसकी थ्योरेटिकल फिलॉसफी क्या है मीडिएशन की, तो we will see that जो की प्रिंसिपल मीडिएशन का है वो है न्यूट्रलिटी, जिसका की प्रिंसिपल है, और इसकी डेफिनेशन सीडर के अंदर आई है मीडिएशन की। एंड सीडर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट dispute resolution organization in the world. It's centered in the UK. यहाँ से भी आप मीडिएशन की क्रेडिटेशन कर सकते हो, महंगी है, तकरीबन 5-6 लाख की है, पर पाकिस्तान के अंदर ऑप्शंस हैं एक्रेडिटेशन मीडिएशन। अगर आप कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन के अंदर जाना चाहते हो कि आपका नाम भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर रोल में आ जाए मीडिएशन की लिस्ट के अंदर, मीडिएटर की लिस्ट में, जिससे कोर्ट जब कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन का ऑर्डर देगा तो आपको आपका नाम भी वहां से चूज किया जा सके, तो आपको अक्रेडिटेशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अक्रेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। यू कैन एडवाइज पार्टीज फॉर मीडिएशन, यू कैन टेक पार्ट इन द मीडिएशन प्रोसेस विद योर क्लाइंट्स, जैसे अभी वीडियो के अंदर हमने देखा। उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है मीडिएशन की अक्रेडिटेशन करने की। इसकी जो मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने लिखे, न्यूट्रलिटी, वॉलंटरीनेस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तीनों बुनियाद है मीडिएशन की, कि ये जिस जो न्यूट्रलिटी का लफ्ज है उससे प्राइमरीली मकसद ये है कि द थर्ड पार्टी इज ओनली सपोज्ड टू फैसिलिटेट द मीडिएशन। द जॉब ऑफ द थर्ड पार्टी इज नॉट टू गिव रेजोल्यूशंस, not to give opinions, because he needs to show the image that he or she is a neutral party. So neutrality maintain करना बड़ा important है इस हद तक कि अगर आपने ये, तो अभी आपने जो मीडिएशन की वीडियो देखी इसमें सब इकट्ठे बैठे थे, फिर इसके अंदर एक स्टेज ऐसा होता है जिसमें आप एक कमरे में एक पार्टी के साथ जाते हो एज मीडिएटर, और फिर एक कमरे में दूसरे पार्टी के साथ जाते हो एज मीडिएटर, क्योंकि कुछ बातें हैं जो पार्टीज एक दूसरे के सामने नहीं करनी चाहती, तो आप अलग अलग जाके उनसे बात करते हो। सो जॉइंट मीटिंग्स भी होती है मीडिएशन में और प्राइवेट मीटिंग्स भी होती है। ये सब एक ही दिन में हो रहा है बाय द वे, अब 2 दिन भी खींच के लेके जा सकते हो, पर जनरली एक ही दिन में ये सारा कुछ मसला हल हो जाएगा। सो जॉइंट मीटिंग्स भी होगी, प्राइवेट मीटिंग्स भी होगी। जॉइंट मीटिंग्स और प्राइवेट मीटिंग्स के दोनों का अपना अपना पर्पस होता है, हम इसकी ऊपर बात करेंगे जब हम सारे प्रोसेस को डिटेल में देख लें। इस हद तक आपने न्यूट्रल रहना है कि अगर आपने प्राइवेट मीटिंग में एक पार्टी को 4 मिनट दिए तो दूसरे को 5 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एक पार्टी के साथ कमरे में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो दूसरी पार्टी को अब दिमाग में ये आ गया कि यार दे आर हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप नाउ, मीडिएटर, और ये बायसेस क्रिएट हो सकते हैं। अपने आप को जितना न्यूट्रल रखना है आपने रखने की कोशिश करनी है, इसीलिए कोशिश करें कभी इवैल्यूएशन की तरफ ना जाए। सो न्यूट्रल रहना की है, हर बात ऐसी करनी है जो न्यूट्रल रहे। अब बातों को न्यूट्रलाइज करने का भी एक तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम छोटी सी, जो बहुत प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल, मैं मीडिएशन में बैठा हूं, मैं क्लाइंट हूं, अग्रीव्ड पार्टी हूं, मेरे सामने भी एक अग्रीव्ड पार्टी बैठी है और उजैर एज अ मीडिएटर बीच में बैठा हुआ है। मैं गुस्से में कहता हूं दूसरी पार्टी को मीडिएटर की तरफ देख के, he is hiding something from me. लेट्स सपोज ये एक हमारा रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, और हमारा डिस्प्यूट ये है कि ये कुछ बातें मुझसे छुपा रहा था, और मैं मीडिएटर की तरफ देख के कहता हूं ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। अब मीडिएटर का काम है कि वो इस बात को सुने और दूसरी पार्टी तक इस बात को कम्युनिकेट करे। अब वो उसको ऑटोमेटिकली सुनाई तो दिया है दूसरी पार्टी को,
बट मीडिएटर का काम है कि वो बात मीडिएटर के थ्रू जानी चाहिए। अब सो फॉर एग्जांपल मीडिएटर यहाँ पे उजैर कहेगा, सो मेरी तरफ देखिएगा, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू नो। अब इस लैंग्वेज को देखो, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, आपने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया है, रादर देन सेइंग कि यार ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। हमने ये न्यूट्रलाइज किया लैंग्वेज को कि आई थिंक यू वांट टू नो अबाउट समथिंग। दैट्स द जॉब ऑफ द मीडिएटर, टू न्यूट्रलाइज लैंग्वेज। सो आपसे एक पार्टी कम्युनिकेट करेगी, आपने उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, उसको प्यारे लफ्जों में लेके अब दूसरी पार्टी के सामने पेश कर देना। और इसी तरह जब दूसरी पार्टी ने कोई बात करनी तो आपने उसको प्यारे लफ्जों में आगे कर देना है। फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस मीडिएशन है, और इन वर्क प्लेस मीडिएशन दो एम्प्लॉयज आपस में लड़े हुए और आपने उनके बीच में मसला हल करवा रहे, और एक पार्टी आपको आपकी तरफ देख के कहती है कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता, या ये मेरी इज्जत नहीं करता, या मेरी बात को रिस्पेक्ट नहीं करता। सो लेट्स सपोज इंग्लिश में अगर हम कह दें दैट ही डजंट रिस्पेक्ट मी, और ही डजंट लिसन टू मी, और ही डजंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, ऐसी बातें बोली जाएगी मीडिएशन के अंदर। अब आपका काम है इसको न्यूट्रलाइज करना। कोई इफ एनी ऑफ यू कैन टेक दिस एक्सरसाइज और मुझे इसको न्यूट्रलाइज करके दिखा सको, सब एक एक करके अपनी तरफ से कर सकते हैं। देयर इज नो वन राइट आंसर, जस्ट ट्राई कि क्या आपके पास कोई ऐसा टूल है जिससे आप इसकी इंटेंसिटी को कम कर सको। मैंने आपको बता दिया, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहना चाह रही है कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, ये मेरी बात नहीं सुनता, और he doesn't give a shit about what I say. What neutral language can you use to communicate this to the other party? Please अपनी तरफ से सब एक एक इस एक्सरसाइज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ही मकसद है इस मीडिएशन ट्रेनिंग का कि ये स्किल बिल्ड हो आपके अंदर। आपने मेरे साथ सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं चलना, इन स्किल्स को अपलिफ्ट करना है, और ये मैजिकल स्किल्स हैं। ये एज ए वकील भी बड़ी काम है, क्योंकि मीडिएशन के अंदर तो यही सब कुछ है कि किस तरह प्यार से एक पार्टी की, क्योंकि आपका काम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, इंटेंसिटी को कम करना है, रिजॉल्व थिंग्स बिफोर थिंग्स गेट्स नास्टी। सो कोई इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है जो मैंने अभी बात की है? He doesn't give a shit about what I say. जी जी जी, प्लीज हो जाएगा। सर इसको इस तरह मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि the other party has a conflict with you in terms of the way of listening or you talk or however it is. ठीक है, वेरी गुड। कोई और कर? जी अब्दुर्रहमान। So इसमें I'd say कि the other party feels that their concerns and feelings are not being considered or valued. Very good, very good, very good. कोई और इसमें कर सकता है ऐड? शाह अली। Sir, what Abdurrahman said, I agree. मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैं कहूँ so from what I understand you feel like you're not being heard. ये भी एक खूबसूरत तरीके से मैं उसके सामने पेश कर सकता हूँ। ये कुछ की वर्ड्स होते हैं, मीडिएटर ने रिपीट करने होते हैं। मीडिएटर का काम है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, फ्रॉम व्हाट आई बिलीव, सो फ्रॉम व्हाट आई नो, फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी। ये बड़े की वर्ड्स हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर पार्टी एक बात करेगी तो आपने उस बात को पैराफ्रेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। योर जॉब इज टू पैराफ्रेज व्हाट द one party said into more neutral language and communicate it to the other party. So मैं कहूँगा from what I understand from Ali is that he feels like he is not being heard. और अब दूसरी पार्टी के ऊपर छोड़ दिया कि अब वो क्या कहेगा, और जो वो जवाब देगा फिर मैं उसकी तरफ से उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को दिखाऊंगा। सो न्यूट्रलाइज करना लैंग्वेज को बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो न्यूट्रल सिर्फ खुद बनना नहीं, बट न्यूट्रलाइज लैंग्वेज को करना वो भी की प्रिंसिपल है। दैट इज द की प्रिंसिपल जिसकी मैंने बात की है, न्यूट्रलिटी।
मैंने इस तरह भी बताया कि ज्यादा टाइम भी कमरे में एक के साथ स्पेंड नहीं करना, एक बंदे को ज्यादा टाइम नहीं देना बात करने का मौका, क्योंकि दोनों को बैलेंस रखना है, कहीं बायसेस क्रिएट ना हो, कहीं एक बंदे को ये ना लगे मीडिएशन में कि यार ये इन दोनों की दोस्ती ज्यादा होगी, मेरे लिए ये नहीं वर्कआउट करेगा, आई शुड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। क्योंकि ये वॉलंटरी प्रोसेस है, दोनों ने खुद डिसाइड किया है, दोनों ने आपको सेलेक्ट किया एज मीडिएटर, तो फिर अब आप इन दोनों के बीच में फैसिलिटेशन करें। काम फैसिलिटेशन का है और किसी चीज का नहीं है, फैसिलिटी हो आप, अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, आप जज नहीं हो, आप आर्बिट्रेटर नहीं हो, you're just a facilitation of communication. So अगर इसकी definition अगर आप लिखें तो मैं इसकी definition इस तरह कहता हूं that mediation is a process where a facilitated negotiation is done by a third neutral party. दोनों पार्टीज आपस में खुद भी negotiate कर सकती है, बट ये negotiation जब एक third party facilitated करता है, that's what mediation is. Sometimes negotiation आपस में दो लोग करें तो वो अच्छी चीज नहीं होती। क्यों negotiation इतना ज्यादा renowned नहीं है, क्यों mediation ज्यादा renowned है? मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। क्यों आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आप एज ए वकील उसको ये नहीं कहोगे यार ऐसा करो ना, तुम दोनों आपस में negotiate कर लो, मसला हल हो जाएगा। क्यों कोर्ट का कहते हो, क्यों मीडिएशन का कहते हो? क्योंकि negotiation sometimes fails, most of the time it fails, and that's why you go to the courts, and that's why you go to a lawyer asking for advice, because you tried negotiation, it didn't work out. Even if you try negotiation, sometimes it will fail, even if you're thinking that it worked out. मैं एक example दे रहा हूँ कि क्यों negotiation fail कर जाएगी, and why sometimes negotiation is bad and we should go towards mediation. Example सुन ले please. एक दो भाई, आप में से शायद ये जिसने मेरे से शायद मीडिएशन पहले पढ़ा उसको ये एग्जांपल मैंने दिया। दो भाई हैं और दोनों के पास ऑरेंजेस विरासत में आए। तो दोनों भाई हैं, इनके पास एक कीनू आया है जो अब्बा जान से विरासत में आया है, बट एक भाई कहता है कि ये अब्बा मुझे देके गए, दूसरा कह रहा है अब्बा मुझे देके गए, और दोनों को कीनू चाहिए और दोनों लड़ रहे हैं इस बात पे, और now they want a resolution, so they decide कि आओ हम बैठ के negotiate कर लेते हैं इसको कि इस कीनू के बारे में क्या करें। वो दोनों बैठते हैं दोनों भाई और दोनों डिसाइड करते हैं यार ऐसा करते हैं कीनू आधा आधा कर लेते हैं, आधा मैं रख लूं आधा तुम रख लो। both of them are happy, they go back home and relax करते हैं। अभी आप में से कौन कहता है, जिसने प्लीज ये एग्जांपल मेरी पहले नहीं सुनी वो जवाब ना दे, सॉरी जिसने पहले सुनी ये एग्जांपल वो जवाब ना दे, जिसने नहीं सुनी वो अगर इसका जवाब दे सके। डू यू थिंक दिस वाज अ गुड नेगोशिएशन? क्या ये फ्रूटफुल थी? दो भाई के बीच में लड़ाई थी उस कीनू के बारे में, और ये नहीं पता था किसको जाएगा कीनू, एक कह रहा मेरा, दूसरा कह रहा मेरा। बाप विल में नहीं लिख के गया, सो अब ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, वो कह रहा मेरा, ये मेरा। दोनों ने बिल के प्यार से बात की कि यार हम ऐसा करते हैं भाई, इसको आधा आधा कर लेते, आधा तुम रखो आधा मैं रख लूं। Was it a fruitful negotiation? Some people would say yes. Some people would say, I need more information to give you an answer. So, a lot of people, सबसे पहले आपके दिमाग में यह आएगा यार हाँ अच्छा हुआ, 50-50 हो गया, आधा आधा हो गया, फेयरनेस, जस्टिस, ये आपके दिमाग में बात आ जाए। बट एक भाई घर गया, उसने कीनू का छिलका उतारा, छिलका डस्टबिन में फेंका, कीनू खा गया। दूसरा घर गया, उसने कीनू का छिलका उतारा, पल्प डस्टबिन में फेंका, और जो कीनू का छिलका था उससे डिजर्ट को गार्निश किया। Do you think there was a better solution? The solution would have been पूरा पल्प एक को दे दो, पूरा छिलका दूसरे को दे दो। What if दूसरे को कीनू पसंद ही नहीं अंदर से, उसको सिर्फ छिलका चाहिए था? Negotiation failed. People think that this was a fruitful negotiation. It failed. अब ये क्यों फेल हुई है? यहां क्योंकि मीडिएटर नहीं था। अभी अगर मीडिएटर होता तो वो जब आप उससे ये कहते कि मुझे आधा चाहिए,
तो मैं आपसे ये पूछता कि यार व्हाई डू यू नीड दिस फ्रूट फॉर, डू यू लाइक ऑरेंजेस? मैं पूछूंगा आपसे ये बात कि आपको अगर ये चीज मिल गया आप उससे क्या करोगे? द जॉब ऑफ द मीडिएटर, दूसरा जॉब बता रहा हूं मैं, एक तो न्यूट्रलाइज करना है पार्टीज को, दूसरा टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. Asking the right question is the key job of the mediator, कि वो आपके अंदर से निकाले इंफॉर्मेशन को, सवाल करके यार क्या करोगे इस कीनू से, कीनू पसंद भी है तुम्हें? और फिर अंडरलाइंग इंटरेस्ट पार्टीज के निकाल ले और फिर एक दूसरे को वो कम्युनिकेट करवा दे. अंडरलाइंग इंटरेस्ट क्या है कि एक को इसको इस्तेमाल करना है डिजर्ट को गार्निश करने के लिए और एक को कीनू खाना है. समटाइम्स ऐसे ऐसे भी होता है, लेट सपोज दो पार्टी सेब के एप्पल के ऊपर लड़ रही है, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं उनके, या से एक एप्पल है उस पर लड़ रही है, वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है मेरा है. पर जब आप बात करते हो तो आपको पता लगता है यार एक को तो सेब से एलर्जी है, वो सेब लेके क्या करेगा? बस कभी कभी पार्टीज इतने स्ट्रिक्ट हुए होते हैं अपने वैल्यूज के बारे में that they don't care what their underlying interest is, they forget their underlying interest because they believe कि अगर उन्होंने कोई और solution निकाला तो वो वो at a disadvantage होंगे. The mediator can help the parties find the best solution, not give a best solution, help parties find a best solution by asking the right questions. सही सवाल पूछे पार्टी से, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और फिर दोनों पार्टीज खुद अपने लिए डिसाइड करेगी यार ओ तुम्हें तो कीनू खाना ही नहीं है, तो यार ऐसा करते हैं मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ सारा छिलका, तुम मुझे कीनू दे दो. ये पार्टीज खुद कह रही होगी मैंने नहीं कहा इनको, मैंने तो इनके अंदर से इन सवालों का जवाब निकाला जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाया. द पार्टीज फाइंड द सॉल्यूशन देमसेल्फ. सो न्यूट्रलिटी, और दूसरा प्रिंसिपल मैंने साथ ये बताया आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. अब एक और चीज है जिसको कहते हैं वॉलंटरीनेस. नो वन कैन फोर्स यू टू मीडिएशन एक्सेप्ट द कोर्ट, विच इज कॉल्ड द कोर्ट एनेक्ट मीडिएशन. कि आप कोर्ट गए हो, कोर्ट के अंदर थोड़ा सा केस आपका चला है या शुरू में कोर्ट ने कह दिया है गो ट्राई मीडिएशन, मैं नहीं करूंगा ये केस तुम्हारा, तो उसमें आप मना नहीं कर सकते, उसमें आप मीडिएटर चूज नहीं करते, कोर्ट चूज करता है मीडिएटर और आपके सामने बैठा देगा. तो वो अगर आप करना चाहते हो एज ए करियर यू कैन गो देयर, बट मेरा वो पर्सनली शौक नहीं है कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन. मैं आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशंस की ऊपर ज्यादा क्या कहते तवज्जो देता हूँ. तो एज लॉयर्स और एज मीडिएटर्स आप आउट ऑफ कोर्ट जरूर काम कर सकते हो. सो बट याद रखिए ये वॉलंटरी प्रोसेस है, दोनों पार्टीज खुद चाहेंगी तब मीडिएशन होगा, वरना ये नहीं कि एक पार्टी चाह रही है दूसरी नहीं चाह रही तो मीडिएशन नहीं हो सकता. दोनों को चाहना जरूरी है और इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, और इसीलिए एज लॉयर आपको अच्छी एडवाइस अपने क्लाइंट को देना जरूरी है कि यार मीडिएशन के फायदे क्या हैं. आज आई एम श्योर आफ्टर 5 days आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बड़े खूबसूरती से बताओगे कि मीडिएशन के फायदे क्या हैं, और यही काम आपका क्लाइंट को बताने का भी है. जी अब्दुल. सर ये तो जो भी आप बता रहे थे ये जेम्स चर्चिल वाला केस जिसके अंदर मतलब मैंडेटरी कर दिए, बिल्कुल इन ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है. In the UK it's completely mandatory, but mediation is not mandatory. It's the consideration of mediation that is mandatory. So mediation mandatory करना है तो बहुत completely बात है, और वो तो कोर्ट मैंने जैसे बताया कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन में ऐसे होता है. पर जैसे यूके के अंदर वुल्फ रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद CPR रूल्स आ गए जिसको सिविल प्रोसीजर रूल्स कहते हैं इन द यूके. इस सिविल प्रोसीजर रूल्स के अंदर प्रोटोकॉल्स रखे गए और उसके अंदर प्री एक्शन प्रोटोकॉल है एक. इसका मतलब है एक्शन कोर्ट एक्शन लेने से पहले कुछ प्री कंडीशंस है जो सैटिस्फाई करनी होती है. उसके अंदर मीडिएशन इज नाउ अ रिक्वायरमेंट. पहले भी 1990s में डाल दिया गया था. जेम्स चर्चिल ने आज कह दिया कि ये कंपल्सरी है, ये किए बगैर नहीं आ सकते तुम. सो कंसिडर डूइंग मीडिएशन. इफ इट फेल्स नो वरीज, आ जाओ वापस. ये नहीं कि भाई सक्सेसफुली मीडिएशन करना है, कंसिडर करो. अगर दूसरी पार्टी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही, आपने प्रपोज किया है, आप लोग दोनों को लगता है कि नहीं मीडिएशन से अब नहीं अच्छी चीज ये बनेगी, देन ना करो मीडिएशन, पर कंसिडर जरूर करो. तो इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस, बट इसके अंदर जरूरी है कि एज लॉयर्स आपको एडवाइस करने आनी चाहिए अपनी पार्टीज को, अपने क्लाइंट्स को, कि भाई क्यों तुम्हें ये फायदा देगी, और ये बहुत फायदा देती है.
और आखिरी है कॉन्फिडेंशियलिटी, मैंने बताया कि कॉन्फिडेंशियल नेचर है इसका। कोई चीज जो मीडिएशन में बात होगी वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती। इट्स विदाउट प्रेजुडिस, यू कांट यूज दिस एनीवेयर आउटसाइड, इट्स कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। अच्छा जी, बहुत सारी बहस जनरली लोग ये करते हैं कि व्हेन शुड वी, आपके सामने स्लाइड्स चेंज हो रही कि नहीं? जस्ट गिव मी अ सेकंड। थर्ड स्लाइड में सर हम। ओके, सो कुछ लोग, सवाल अब ये रहता है कि व्हेन टू डू मीडिएशन, मीडिएशन कब करनी चाहिए? क्या कोर्ट में केस जाने से पहले मीडिएशन करनी चाहिए? क्या कोर्ट में केस आ चुका है तब भी मीडिएशन की जा सकती है? या जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तब जाके अब मीडिएशन ट्राई करें? जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तब इट्स टू लेट, क्योंकि कोर्ट से डिसीजन आ गया, एक पार्टी जीत चुकी है, एक हार चुकी है, वो अब टेबल पे क्यों बैठेगी आपके साथ, जो जीती हुई पार्टी? बट ड्यूरिंग लिटिगेशन एंड प्री लिटिगेशन मीडिएशन का ऑप्शन बहुत अच्छा अवेलेबल होता है। 80% of the people and the success rate is in pre-litigation stage, कि कोर्ट में केस जाने से पहले ही अगर मीडिएशन ट्राई कर लो तो बेहतर है। बहुत सारी मीडिएशन, याद रखें, ड्यूरिंग लिटिगेशन होती है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर केस करके बैठ गए हो, साल 1.5 साल केस चलता जा रहा है, अभी तक कोई बात नहीं बनी, और आप एक दूसरे को कहते हैं यार भाई प्लीज आओ मीडिएशन कर ले, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ड्यूरिंग लिटिगेशन भी बहुत सारी मीडिएशन होती है। ड्यूरिंग लिटिगेशन मीडिएशन जरा ज्यादा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि आप जा चुके होते हो, ठोकर खा चुके होते हो कोर्ट की, आपको समझ लग पता जाता है कि आई कोर्ट में क्या होगा आपके साथ। फिर आप कहते हो अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कोर्ट के बाहर ही मुकाव करते हैं, एक ही दिन में मसला हल हो जाएगा, क्या 10-15 साल और कोर्ट में बैठे रहे। So during litigation, it's easy to excite the parties to do mediation, but it's okay to do it during, कोई इसमें नुकसान नहीं है। पर प्री लिटिगेशन है वो सबसे बेहतरीन स्टेज है मीडिएशन ट्राई करने का। यहां अगर मीडिएशन फेल कर भी जाए तो वो आपको हेल्प जरूर करेगी टू नैरो डाउन योर इश्यूज, कि आप जब कोर्ट जाओगे तो आपको पता है यार ये मुझे 2-3 चीजें के बारे में बात करनी है, 2-3 चीजें मुझे चाहिए। वरना तो कोर्ट में आप बहुत ज्यादा टाइम कमर्शियल, फैमिली, वर्क प्लेस मीडिएशन में ज्यादा टाइम यही गुजार रहे होते हो टू फाइंड योर एक्चुअल इंटरेस्ट। सो मीडिएशन विल हेल्प यू narrow down these issues. So pre-litigation stage is the best stage for mediation. Advice करें parties को शुरू में, जैसे मैंने अभी एक phrase बोला, resolve things, try mediation before things gets nasty. यहाँ nasty हो जाएगा जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग लिटिगेशन की, क्योंकि आप केस कर चुके हो। अगर मेरे खिलाफ जुनैरा केस कर दिया और मुझे कोर्ट का समन आ गया, आई ऑलरेडी हेट जुनैरा नाउ, अब मुझे वो टेबल पे बैठना जुनैरा के साथ अच्छा नहीं लगेगा, और मैं बहुत गुस्से में भी होऊंगा कि यार मेरे खिलाफ देखो केस कर दिया ऐसे। बट केस किए बगैर ये साइकोलॉजिकल भी है कि उससे पहले अगर बैठा दो तो ज्यादा चांसेस हैं कि मीडिएशन सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि अभी गुस्सा नास्टी नहीं हुआ, चीजें अभी नास्टी नहीं हुई, गुस्सा अभी भी बहुत ज्यादा नहीं आया। सो ड्यूरिंग लिटिगेशन थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा हो चुका होता है, बट विलिंगनेस भी कभी कभी ज्यादा हो जाती है। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये भी है और स्टार्ट्स भी यही शो करते हैं कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल वन। सो ट्राई कि आपने जब पार्टीज आई उनको पहले से बता दो यार केस ना करो, नोटिस ना भेजो, आप मीडिएशन का नोटिस भेज दो उनको बताओ, उनके सामने ऑफर डालो दैट वी वांट टू ट्राई मीडिएशन, और उनको किस तरह परसुएट करना है मीडिएशन के लिए ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि किस तरह एक रिलक्टेंट पार्टी को, जिसको मीडिएशन नहीं करनी, जिसको लगेगा कि नहीं मैंने अगर मीडिएशन पे मान लिया तो मेरा तो क्या कहते हैं भरम कम हो जाएगा और मेरा तो केस बहुत पक्का है, मैं तो कोर्ट जाके इसको मजा चखाऊंगा। कुछ लोग, कुछ पार्टीज ऐसी होंगी, पर उनको बताना कि क्यों मीडिएशन ही उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, इसकी भी ट्रिक्स एंड स्किल्स हैं हमारे पास।
अच्छा जी, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम कर लें चूज करने के लिए कि कौन सा मीडिएशन स्टाइल चूज करना चाहिए आपको, इफ यू आर अ मीडिएटर, what style should a mediator choose? There are three main styles. There are a lot of styles, पर हम main 3 styles हैं जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किए जाते हैं. Facilitative mediation, evaluative mediation, and the transformative mediation. अच्छा जी, facilitative mediation is the norm. When I say it's the norm, इसका मतलब है 90-95% ये facilitative mediation ही इस्तेमाल होता है और लोग इवैल्यूएटर और ट्रांसफॉर्मेटिव में नहीं जाते. सो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि जो नॉर्म है वो इट इज द फैसिलिटेटिव मीडिएशन विच इज द नॉर्म. तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पे रहो. बट व्हाट इज फैसिलिटेटिव मीडिएशन? वर्ड इटसेल्फ शोज कि फैसिलिटेट करना है पार्टीज को, assisting parties to reach their own solution. You don't have to make solutions for them. You don't have to give your opinions. You don't have to evaluate their standings. You don't have to evaluate their case. You need to assist parties by asking right questions, by keeping the environment neutral, into मेकिंग द पार्टीज रीच देयर ओन सोल्यूशन. भाई आपने इनके बीच में मसला हल करवाने की कोशिश करनी है, मसला हल उन्होंने खुद करना है, सोल्यूशन उन्होंने खुद ढूंढना है, एक दूसरे को ऑफर्स उन्होंने खुद माननी है. मीडिएशन के अंदर एक स्टेज होता है जिसको ऑफर स्टेज कहते हैं. उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर्स मारती है, अच्छा ये कर लो, अच्छा ये कर लेते. आपने नहीं ऑफर देनी उनको, आपने एक की ऑफर दूसरी पार्टी तक कम्युनिकेट जरूर करनी है कि यार ये कह रहा है, तो या आप कहोगे नहीं दूसरा नहीं मान रहा, वो तो ये कह रहा है. ऑफर काउंटर ऑफर्स आप करवा सकते हो और फिर आखिर में एक्सेप्टेंस होके कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं हम. आखिरी स्टेज हमारा यही है, अग्रीमेंट स्टेज, जिसमें हम इनके अगर सक्सेसफुल हो गया मीडिएशन तो हम आखिर में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. सो एज लॉयर आपको ये बात भी पता होगी, अगर आप मीडिएटर की चेयर पे नहीं बैठे बट एज ए लॉयर आप अपनी क्लाइंट को एडवाइस करने के लिए साथ मीडिएशन में गए हो, जो आपको हमेशा जाना पड़ेगा, तो वहां आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर में एक अग्रीमेंट बनेगा जो आपको बनाना आना चाहिए. इसको हम मीडिएशन अग्रीमेंट कहते हैं. ये मीडिएशन अग्रीमेंट आखिर में बनता है अगर आपके लिए सक्सेसफुल हो गया, आप दोनों ने एक सोल्यूशन निकाल लिया अपने लिए, तो आखिर में जो लॉयर है दोनों पार्टीज को बैठ के इस कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करेंगे और इन ऑफर्स को और इन टर्म्स को एक पीस ऑफ पेपर पे डाल के बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. Although mediation is not binding, but this contract that will be made at the end will be a binding contract. अगर अब उसकी पासदारी आपने नहीं की तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप सूट किया जा सकते हो. और कोर्ट में जाके अगर कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन है वो बाइंडिंग है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि तुम मीडिएशन करके आओ, तो उसमें जो मीडिएटर है वो भी कोर्ट ने सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें वो ओपिनियन नहीं दे रहा, बट जो पार्टीज ने अपना एक सोल्यूशन निकाला है उसको कोर्ट के पास लेके जाके कोर्ट की जजमेंट की तरह पास करवाया जाता है उसको, तो वो तो कोर्ट ऑर्डर बन जाता है रादर देन अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कोर्ट एंड एक्ट मीडिएशन के अंदर जो आपने एग्रीमेंट रीच की होती है वो कोर्ट से जाके आप सैंक्शन करवा देते हो और उसका कोर्ट की एक डिक्री पास हो जाती है. सो इट इज एज इफेक्टिव एज अ कोर्ट ऑर्डर. बट इफ यू आर डूइंग outside court and next mediation, then it is not binding, but the contract that will be made at the end will be a legally binding contract. और वो एज लॉयर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने आना चाहिए. सो ऑलवेज स्टिक टू फैसिलिटेटिव मीडिएशन. हाउएवर some people do try evaluative mediation only and only if the parties want. अब let's suppose मैं जैसे मीडिएशन जानता हूं पर मैं मीडिएशन के अंदर एक स्पेसिफिक चीज के अंदर एक्सपर्ट हूं और वो है एम्प्लॉयमेंट और वर्क प्लेस मीडिएशन. जो कंपनीज के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट्स हैं, एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट्स हैं, इनको मैं ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं, इसमें एक्सपर्ट हूं मैं. सो लेट्स सपोज अगर मुझे कोई हायर करता है एज अ मीडिएटर, मुझे कहता है कि हम चाहते हैं कि आप एक सोल्यूशन भी दें, तो फिर मैं सोल्यूशन भी दे सकूं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज ऐसी है कि मैं उनको हेल्प कर सकता हूं. जनरली मीडिएटर डजंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन एनी टॉपिक.
जरूरत ही नहीं है। कल मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको समझ आएगी इस बात की कि एक मीडिएटर का काम नॉलेज रखना नहीं है उस सर्टेन टॉपिक के ऊपर, कि अगर कमर्शियल मीडिएशन हो रही है तो आपको कमर्शियल मीडिएशन का एक माहिर होना है या कमर्शियल लॉ का माहिर होना है। नो, योर जॉब इज जस्ट टू वो बात, एक पार्टी जो बात कर रहे हो दूसरी तक पहुंचाओ, इतना सिंपल सा काम है। बट द स्किल इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, इट्स द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू नीड टू मास्टर। और ये सॉफ्ट स्किल्स तो आपको जितना हेल्प अपनी लाइफ में एज वकालत एज मीडिएटर करेगी, ये तो इसके कोई हद नहीं है, क्योंकि एक अच्छा वकील का काम ही है कि उसकी सॉफ्ट स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। सो some people, parties can ask for evaluative mediation. You should try generally not to go for evaluative mediation because there's a risk of breach of contract, there's a risk of negligence. तो कोशिश करो कि आप खुद ना करो, पर अगर पार्टीज मांगे तो आप ये evaluative mediation की तरफ जा सकते हो। Sometimes the research shows that most of the mediators, they start the mediation as a facilitative mediation, और जब बीच में उनको लगता है कि यार डेडलॉक्स क्रिएट हो रहे हैं और बीच में होंगे डेडलॉक्स क्रिएट, तो फिर वो अपना रोल चेंज करके इवैल्यूएटिव मीडिएशन में बदल देता है। ये भी होता है कि यू स्टार्ट एज फैसिलिटेटिव, बट व्हेन देयर इज अ नीड इन द मिडल और समवेयर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यू चेंज इट एज अ इवैल्यूएटिव मीडिएशन, कि आप इवैल्यूएशन पे आ जाओगे, ओपिनियन दे दोगे, एक नॉन बाइंडिंग असेसमेंट दे सकते हो पार्टीज के मेरिट्स के बारे में। सो you can change the process, you can start with facilitative and बीच में आखिर में evaluative के अंदर आ जाओ, ये भी कर सकते हो। बट याद रखिए, with the consent of the parties, that's only when you should give an evaluation, and there's a risk of breach of contract and negligence. So try not to be an evaluative mediation का हिस्सा, but rather a facilitative mediation. फिर हमारे पास है द ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है एम्प्लॉयमेंट और वर्क प्लेस मीडिएशन के अंदर, वो या इवन इन टर्म्स ऑफ फैमिली मीडिएशन एज वेल। बाय फैमिली मीडिएशन आई मीन मैरिज सेटलमेंट्स के मसले हैं, डिवोर्स के केसेस हैं, चाइल्ड कस्टडीज के इश्यूज हैं, ये सब इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं। यहाँ पे आपको पता है फैमिली के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर हमें रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। दैट्स द की। कोर्ट विल, गोइंग टू द कोर्ट विल डिस्ट्रॉय इट। आपके मामू के खिलाफ अगर आप केस करोगे कि मामू ने अम्मा की जायदाद नहीं दी, तो मामू उसके बाद केस करने के बाद आपसे रिश्ता रखेंगे? मामू कहेंगे तू कौन मैं कौन, अब तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। पर अगर आप मामू के साथ ये बात करो कि मामू लेट्स कम एंड सिट ऑन अ टेबल, और मीडिएटर एक है वो हमारे इस मसले को हल करवा देगा, शायद मामू को बुरा लगे बट रिलेशनशिप टूटेगा नहीं आपका। कोर्ट में तो गया आपका रिलेशनशिप, अब वो मामू नहीं रहा, उनको अंकल कहा करो फिर, या उनका कोई और नाम रख लो, उनको मामू नहीं कह सकते आप क्योंकि वो नाम चला गया। हमारे एक जानने वाले, उनके वो मेरे दोस्त के फूफा थे, सो उन्होंने मेरे दोस्त के अबू के ऊपर केस कर दिया कि तुमने उसकी अब्बू की जो बहन है, जो उसकी फूफी है, उनकी कोई जायदादें देनी थी इसके अब्बू ने, जो दे चुके हैं, पर जो क्या कहते फूफा था वो बड़ा लालची था कि नहीं मैं बीवी के लिए और भी अपनी जायदादें इनसे ले लूंगा। उसने केस कर दिए और 1-1.5 साल केसेस चलते रहे। अब मेरा दोस्त उसको उसके नाम से, अपने फूफा को नाम से बुलाता है, उसको फूफा नहीं कहता, पहले उसको फूफा कहता था, अब उसको कहता है हुसैन, उसका नाम वो कहता है वो हुसैन से बात हुई थी आज। सो ये मसला हो जाता है आपके उसके अंदर। इमेजिन करें आपके मामू हैं, उनका नाम मुस्तफ़ा है, और आप उनको हमेशा बचपन से मामू मामू कह के बुरे बड़े हुए, और आज आप कहते हो मुस्तफ़ा आया था आज, तो ये होगा। और ब्रेकेज ऑफ रिलेशनशिप ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी देखोगे, दैट पीपल ब्रेक रिलेशनशिप्स। सो द मीडिएशन विल हेल्प ट्रांसफॉर्म द होल रिलेशन, स्पेशली वो रिलेशनशिप जो टूट चुका होता है उसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है मीडिएशन के थ्रू, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स के अंदर और फैमिली क्या रिलेशनशिप्स के अंदर। सो यू कैन ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप्स। वहां पे फिर एज अ मीडिएटर आपका काम होगा कि आप थोड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन करें। इसमें आपका काम दोनों पार्टीज के बीच में दोस्ती करवाना है।
ऊपर फैसिलिटेटिव के अंदर बात इधर से उधर पहुंचाना है, इवैल्यूएशन में इवैल्यूएट करना है, और ट्रांसफॉर्मेटिव के अंदर दोनों में दोस्ती करवाना है। अब इसके अंदर लैंग्वेज आपका जो इस्तेमाल करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, सो रोल क्या है मीडिएशन का? जो आपका मीडिएटर है, मीडिएटर के कुछ की रोल्स हैं। एक मीडिएशन प्रोसेस से पहले भी एक स्टेज होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं प्री मीडिएशन प्रोसेस। ये प्री मीडिएशन प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, इनफॉर्मल होता है। इसमें बेसिकली जो मीडिएटर है वो दोनों पार्टीज को कॉल करता है, बहुत शुक्रिया आपको मुझे एज अ मीडिएटर क्या सेलेक्ट करने की, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता हूं दोनों के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोनों के बीच में एक जो रेजोल्यूशन है वो रीच हो जाए। ये आप एक जरा वेलकम मैसेज सा कॉल करोगे उनको, और फिर उनके साथ डिस्कशन करोगे कि अच्छा टाइम डेट क्या डिसाइड करें हम, बिकॉज इट्स सच अ वॉलंटरी प्रोसेस, टाइम डेट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। और इस प्री मीडिएशन स्टेज के अंदर मीडिएटर बता देगा दोनों पार्टीज को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती मीडिएटर को बताने की, बट मीडिएटर ये बताएगा कि यार मुझे एक आपका क्या कहते हैं कोर बंडल चाहिए, जिसके अंदर जिसमें आप नहीं जो मीडिएटर है उनको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, बट वो आपको कहेगा कि ये सब कुछ प्रिपेयर कर लो मीडिएशन के लिए। एक ओपनिंग क्या कहते फेज आप प्रिपेयर कर लो, जिसमें आपने एक ओपनिंग स्पीच देनी, वो आपको सारा स्टेज बता देगा, सारे फेजेस बता देगा मीडिएटर बिफोर द मीडिएशन हैपेंस। यार ये सारा प्रोसेस होगा, ये आप थोड़ी सी प्रेपरेशन कर लो, और फिर एक ही दिन के अंदर इंशाल्लाह इसको मुकाने की कोशिश करें। सो ये एक प्री मीडिएशन का टाइम होता है, इसके अंदर दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन करके वो उनको प्रिपेयर कर सकता है फॉर मीडिएशन। दिस इज द प्रेपरेशन फ्रॉम मीडिएशन, कि दोनों पार्टीज को प्रिपेयर करना। और इसमें जनरली एज लॉयर्स आपका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मीडिएटर नहीं हो, लॉयर हो, और आपकी जो आपका जो क्लाइंट है उसको मीडिएशन में जाना है, और उसने सेलेक्ट कर लिया मीडिएटर, अब आपने अपने क्लाइंट को हेल्प करना है मीडिएशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। जैसे आप कोर्ट में भी जाते हुए अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करके जाते हो ना, कि यार ये क्या इन कोर्ट जब जरा होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, चीफ एग्जामिनेशन होगी, तो ये बातें करनी है, इन बातों का जवाब नहीं देना, ये बातें का जवाब इस तरह देना है। कोर्ट में जैसे आप अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करके जाते हो, मीडिएशन में भी एज ए लॉयर आपने क्लाइंट को प्रिपेयर करके जाना है, तो इसीलिए आपको मीडिएशन का पता होना जरूरी है, वरना आप उसको प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। सो इसका काम मीडिएटर का है कि ये ऑर्गेनाइज करेगा पूरे प्रोसेस को। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर हम जॉइंट मीटिंग्स करेंगे जिसको हम क्या कि कॉकसेस कहते हैं, फिर हम इसके अंदर प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे, फिर वापस जॉइंट मीटिंग्स करेंगे। एक पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकता है। उसका काम है कि वो फैसिलिटेट करे और वो इंटरमीडिएरी दोनों पार्टीज के बीच में बैठे। कल मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके ऊपर मैंने अभी बताया कि मीडिएटर को एक्सपर्ट किसी चीज का होना जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू कैन जस्ट एक्ट एज सच टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, और वो किस तरह एक्ट करना पड़ता है उसके अंदर एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार मैं कमर्शियल मीडिएशन कर रहा हूँ तो मुझे नॉलेज होना जरूरी है, तभी मैं उससे सवाल पूछ सकूंगा। नहीं, यू जस्ट नीड टू एक्ट इंटरेस्टेड, act interested, and making sure that the other party is being listened, being heard is the key skill over here. So कुछ ethical considerations के बारे में अगर हम बात कर लें आज, और this will be the last thing probably जिसके ऊपर थोड़ी सी आज हम बात कर रहे हैं, और फिर एक क्या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कॉन्फ्लिक्ट अनियन कहते हैं। ना कॉन्फ्लिक्ट अनियन के बारे में मैं बात करता हूं, पहले थोड़ी सी एथिकल कंसिडरेशन की बात करने कि इम्पार्शियलिटी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉम्पिटेंस, ये तीन एथिकल कंसिडरेशन को एक मीडिएटर ने दिमाग में रखना है कि उसने इम्पार्शियल रहना है पूरा टाइम, मेक श्योर करना है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे। सो एक पार्टी ने जो आपको प्राइवेट मीटिंग के अंदर एक प्राइवेट रूम में मीडिएटर को एक पार्टी ने बात की है, वो दूसरी पार्टी को वो बात जाके नहीं बताएगा। ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है।
इसी तरह जो बातें पूरे मीडिएशन में हुई उसको कोर्ट में जाके आप कभी बात नहीं कर सकते। वो एक कॉन्फिडेंशियल नेचर का एनवायरनमेंट था, उसके उस रिलेशनशिप से बाहर कोई बात नहीं जा सकती। और कॉम्पिटेंस इसका मतलब है कि आपको ये स्किल अच्छी आनी चाहिए, तभी आपको मीडिएशन में बैठना पड़ेगा, तभी जाके आपको मीडिएशन में बैठना चाहिए। इफ यू नो द राइट स्किल, इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन अ सिंगल टॉपिक or a single area of law. You don't even need to be a lawyer in order to be a mediator. But you need to have the skill of asking the right questions. It's such an interesting job. And the whole idea कि आप conflict resolve कराते हो parties के बीच में, और जो वो आपको उससे उसके अंदर से जो euphoria, ये जो happiness आती है, वो भी बहुत important है. So like I said, conflict onion के बारे में हम बात करेंगे कि what is conflict onion. But उससे पहले let's do a small exercise. Please गौर से मेरी exercise को सुनना है. आप लोग सबसे ये start होगी और उज़ैर is going to start it. मैं start करूंगा, फिर मेरे बाद उज़ैर start करेगा, और फिर एक एक करके सब अपने आप को देख लें कि वो लाइन में कहाँ पे खड़े हुए. तो जब उज़ैर के बाद अब्दुल रहमान बोलेगा, फिर अली बोलेगा, फिर जुनैरा बोलेगी. प्लीज नो योर क्या कहते हैं, योर ओन पोजीशन, किस टाइम के ऊपर आपने बोलना है. नाउ जो एक्सरसाइज है वो ये है कि एक स्टोरी सुनाएंगे हम. मैं स्टोरी स्टार्ट करूंगा और वो स्टोरी आखिर में जाके खत्म होगी जो आखिरी बंदा होगा. अब इसमें करना ये है कि मैं और सब ने एक एक फ्रेज सिर्फ ऐड करना है स्टोरी के अंदर. फॉर एग्जांपल, मैंने एक फ्रेज बोला, उज़ैर उसको कंटिन्यू करेगा एक फ्रेज बोल के, फिर अब्दुल रहमान उसको कंटिन्यू करेगा एक फ्रेज बोल के, फिर अली उसको कंटिन्यू करेगा. एंड दिस इज कीप ऑन गोइंग ऑन आखिर तक. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद एक अच्छा शहर है, तो Uzair, you have to continue and you need to add your phrase, just one phrase, but it must be connected to my previous phrase. ये नहीं कि मैंने कहा इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर है और आपको मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, ये नहीं हो सकता. It needs to be connected with my phrase. ठीक है. So मैं एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे हम, और फिर मैं बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज कितनी बेनिफिशियल है कि आप ने अपने प्रीवियस वाले बंदे का फ्रेज सुनना है और फिर उसको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक अपना फ्रेज ऐड करना है. ठीक है जी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड माय फ्रेज, माय स्टोरी इज, द फ्रेज इज दैट conflicts are eminent in workplace. Is that? जी. Sir, could you repeat it again? कोई मसला नहीं है. Take your time. Just add one phrase that comes to your mind. It must be connected to what I just said. Conflicts are eminent in workplace. Most definitely, conflicts are imminent in workplaces. Yeah. As I have a conflict with someone. ठीक है. Abdul Rahman, if you can add any phrase into that. If you have a conflict with someone, you need to sort it out. Very good. जैसे उसने रिपीट किया, अब्दुल रहमान ने उसको आगे भी कहा कि if you have a conflict with someone, you must, आगे क्या कहा? You must sort it out to maintain a good. You must sort it out. इधर रुक जाते. आगे अली. You must sort it out in a mature manner so that things get resolved. Sorry. Okay. Zinera. Things get resolved without damaging the relationship. Very good. Masood. Both the party brings their documents regarding the solutions. ठीक है. आपने सुनहरा क्या बोला था? Things get resolved without damaging the relationship. So the things get resolved without damaging
द रिलेशनशिप, इसकी कनेक्शन में मंसूर कोई बात करनी, एक फ्रेज ऐड करना। कोई भी, जस्ट बी क्रिएटिव, जस्ट ऐड एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ, जैसे जुनैरा ने कहा टू रिजॉल्व द रिलेशनशिप, टू क्या कहते हैं, लेसर डाउन द डैमेज इन द रिलेशनशिप, और मैं आगे ऐड करता हूँ एंड दिस इज बेस्ट डन बाय यूजिंग मीडिएशन। इसी तरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, उसके अंदर ऐड करो, and the best way to do is not negotiation but mediation. The best way to do is to bring to know about the both the parties, what their issues are. Is to know the best of the interest of the parties. ठीक है जी, आगे हो गया जासिम। Second, to solve it with the facilitation of the third party. ठीक है, और इसके लिए आगे जासिम कंटिन्यू करता है, जैसे मंसूर ने कहा टू नो द इंटरेस्ट, एंड जासिम सेड दिस इज बेस्ट डन थ्रू फैसिलिटेशन ऑफ नेगोशिएशन। ऑलराइट, आगे प्लीज, आगे प्लीज, सारा, उसामा, इस फ्रेज को कंटिन्यू करें, स्टोरी को। However, it would be maintained confidential. However, it should be maintained confidential. Very good. आगे ज़ैनब, कोई रिपीट कर सकता है एक बार? उसामा ने अभी कहा है, however, it must be made confidential. I'm sorry, connect नहीं हो पा रहा। Okay. और कौन है हमारे पास? सारा, if you can say anything after this. कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ऐड कुछ शुरू में आपने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर एमिनेंट इन वर्कप्लेस, क्योंकि अभी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, जितने फ्रेजेस आपने ऐड किए तो मैं क्या मैं आपको लास्ट फ्रेज बताता हूँ जो सामा ने यूज किया, वो ये है, however, it must be made confidential. ये बात अभी मीडिएशन की हो रही है, सबने अपना अपना ऐड किया, बात फिर मीडिएशन पे आ गई, और अब उसने कहा कि however it must be made in confidentiality. How would you continue the story? Add anything. And for that, for example, you can say, and for that, the mediator must keep things private. And for that, listen like actively and of course neutrality के साथ चले, ऐसे words you should use words neutrality. ऐसे होगा, however, there must be confidentiality, you can say, and also maintain impartiality and be competent. Add कर दो उसके अंदर चीजें, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज अगर हम बार बार करें तो इसके अंदर कुछ अभी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपने सीखा है कि ये एक्सरसाइज किस तरह की जाती है, बट दिस एक्सरसाइज इज सुपर इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। मीडिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम सुनना है, कि आप पार्टीज को सुन सको और फिर उनको पैराफ्रेज करके, उनको न्यूट्रलाइज करके दूसरी पार्टी तक पहुंचा सको। हम एक्सरसाइज एक ये भी करेंगे जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को 10 मिनट एक बात बोलेगी, और उस 10 मिनट के बाद आपने उसने जो पूरे 10 मिनट में बोला है उसको समराइज करके वापस से उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे 10 मिनट गाने सुनाए, मेरा नाम मंसूर है, मैं इधर इधर से हूँ, मैंने ये किया हुआ है और मेरा इंटरेस्ट ये है। 10 मिनट की आपने कहानी सुनाई, अब मैंने पैराफ्रेज करके बताना है। सो Mansoor, nice to meet you. So from what I've heard from you, you have studied from here. अब एक पैराफ्रेज समराइज करके मैंने आपके पास वापस से वो चीज पेश करनी है within 2 minutes.
ये एक मीडिएटर का काम है, क्योंकि मीडिएशन की जो ओपनिंग फेज है इसके अंदर एक पार्टी अपने इंटरेस्ट लेके आती है, दिखाएगी पूरे 8 से 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट में, और फिर दूसरी पार्टी को ये मौका दिया जाएगा, पर उससे पहले मीडिएटर सारी ये बात वापस रिपीट करेगा, न्यूट्रलाइज करके उसको। सो आपको एक्टिव लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज कि आपको याद रहे कि पीछे वाले ने क्या कहा है और उसका एक कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रखना, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एक्टिव लिसनिंग के लिए। सर एक्टिव लिसनिंग मस्ट बी वेरी फ्लॉलेस। ये हम करेंगे 2-3 दफा और दफा भी ये एक्सरसाइजेस इन टर्म्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एंड दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल। So if anyone has any questions, जी आलिया, you have a question? सर ये एक्टिव लिसनिंग और जो रिपीटेशन है एक चीज की, वो अलग अलग रूम की वजह से हो रही है या फिर एक रूम में होते हुए भी वो बंदा दोबारा एक चीज को रिपीट कर रहा है, अदरवाइज मतलब अगर मैंने सुन लिया रूम में होते हुए भी रिपीट कर रहे हो, क्योंकि आपने उस लैंग्वेज को न्यूट्रलाइज करना है, आपने दूसरी पार्टी को मेक श्योर करना है कि उसने ये बात समझी, क्योंकि 10 मिनट किसी की बात सुनना इतना आसान नहीं है। रिसर्च शो करती है कि अगर कोई बंदा 10 मिनट बात कर रहा है तो आपने उसके पहले मिनट पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे और उसके आखिरी मिनट पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे, वो बातें आपको याद रहेगी, और बीच वाली बातें आप जनरली आधी आधी भूल जाओगे। ये बहुत बहुत रेगुलरली होता है। सो टू मेक श्योर कि आपने अगर 10 मिनट बात की है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप नोट टेकिंग कर सकते हो, जब वो बात कर रहा हो आपने पॉइंटर्स बनाए और फिर आपने 2 मिनट के अंदर उसको समराइज किया। सो आई हैव हर्ड आपको इस चीज के अंदर मसला है, यू वांट दिस मनी फॉर दिस रीजंस, आपने ये बातें सारी समराइज की और दूसरी पार्टी को 2 मिनट के अंदर कम्युनिकेट कर दिया, उसी रूम में बैठे हुए। इसमें क्या प्राइवेट मीटिंग्स की जरूरत नहीं। लेकिन सर जस्ट बिकॉज उस बंदे ने ऑलरेडी चीज को अपने उसी अंदाज में बोल दिया है, व्हाट मेक्स मी थिंक कि मैं जितना मर्जी उसको शुगर कोट कर दूं उसका पर्सपेक्टिव उस बंदे के बारे में बदल जाएगा? नहीं, आपने उसका पर्सपेक्टिव भी नहीं बदलना, आपने शुगर कोट नहीं करना, आपने न्यूट्रलाइज करना है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स, आप पता नहीं थी उस टाइम पे नहीं, कि जिसमें हमने एक एग्जांपल ली दैट दिस गाय डजंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट आई से, तो मैंने उसको कम्युनिकेट किया दूसरे को, सो व्हाट अली इज सेइंग दैट ही इज नॉट बीइंग हर्ड। ये जो एक्सरसाइज होती है न्यूट्रलाइजिंग की, ये माहौल को ठंडा रखती है उस कमरे में। हमने माहौल को गर्म नहीं होने देना उस कमरे में। उस कमरे में आने का मकसद ही यही था कि दोनों पार्टीज अपने इस मसले को रिजॉल्व कर सके। तो वहां पे मीडिएटर का काम, क्योंकि आप जज नहीं हो कि सब रिस्पेक्ट में आपके सामने चुप होके बैठेंगे और फिर आप कंटेम्प्ट उनके ऊपर इशू कर दोगे अगर किसी ने बदतमीजी की, जैसे कोर्ट में होता है। यहाँ तो वो अभी अपने मैंने वीडियो दिखाई जिसके अंदर शुरू में वो उसने बात काट दी और बीच में बोल पड़ा, और ये होगा। और एक पार्टी आपके सामने आवाज ऊंची करके दूसरे को एड्रेस कर रही है, वहां पे आपने माहौल को ठंडा करना है, पैराफ्रेज करना है, और फिर की इंटरेस्ट कम्युनिकेट करना है। वो 10 मिनट में उसने 10 मिनट में 8 मिनट उसने बकवास की थी, वो नहीं कम्युनिकेट करना आपने। जो की इंटरेस्ट था उसका वो फाइंड आउट किया आपने, और दूसरे को यार इसको असल में ये चाहिए, इसको असल में कीनू का छिलका चाहिए, सिर्फ ये बता दिया आपने दूसरे को पैराफ्रेज करके। ये एक स्किल है जो विद टाइम आप सीखोगे। ठीक है जी। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? If not, we're going to end this day today. Please make sure from tomorrow, जिसने कैमरास नहीं ऑन किए थे, please keep your cameras on tomorrow, वरना फिर I would have to kick you out of the session. I'll see you inshallah tomorrow at 2 p.m. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.